the black aeroplane. That's the second part of two stories about flying, right? The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England, and I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. Who could it be? It's a pilot, right? The pilot of Old Dakota, he is flying above the clouds. And he says the moon was coming up in the east behind me. If the east was behind, so he was heading in the direction of west, right? The stars were shining in the clear sky above him. Sky jo tha, ekdam clear tha. He could see the shining stars, not even a single cloud. And he was very happy to be alone high up above the sleeping countryside. नीचे रात का टाइम था. It was around 1:30 in the morning, which means कि रात चल रही थी उस समय. And he could see the countryside sleeping. मतलब नीचे जो था सब शांत था. Everybody was sleeping. सारा ऊपर से आसमान से जितना भी एरिया उसको दिख रहा था, everybody was sleeping. It was a beautiful scene from there. I was flying my old Dakota airplane from over France back to England. और वो इस टाइम फ्रांस को क्रॉस कर रहा था, इंग्लैंड जा रहा था. He was really looking forward to a holiday. Probably Christmas time tha, so he was dreaming of his holiday and looking forward to being with his family. कि इस holiday season वो भी अपनी family के साथ Christmas celebrate करेगा, New Year celebrate करेगा. I called Paris Control soon. I should call Paris Control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088, can you hear me? I'm on my way to England. Over. आप जिसकी भी एयर स्पेस से क्रॉस कर रहे होते हो, यू आर सपोज टू इन्फॉर्म द ग्राउंड स्टेशन कि आपका प्लेन कहाँ से जा रहा है, कौन सा प्लेन है, सो दैट बाय मिस्टेक वो लोग आपको शूट ना कर दें. सिंपल एज दैट. नोबडी वुड लाइक एन एनिमी एरोप्लेन इन देयर स्काई, राइट? तो ये इनका प्रोटोकॉल होता है. दे हैव टू इन्फॉर्म द ग्राउंड स्टाफ. सो ही कॉल्ड द पेरिस कंट्रोल सेंटर एंड ही सेड कि I looked down past the nose of the aeroplane. बिल्कुल सामने देख रहा था. He saw the beautiful big city in front of me, and it was a city of lights. Which is the city of lights here? They are referring to Paris, right? नॉर्मली जितने भी मेट्रो सिटीज हैं रात में काफी लेट रहते हैं, काफी लाइट्स ऑन रहती हैं. तो अगर आप आसमान से देखो तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर जैसे अभी भी चल रहा है, अभी भी जाग रहा है, पूरी लाइट्स चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है. तो ही looked at that and he saw it was the lights of that big beautiful Paris. And he switched on the radio and he said, Paris Control, Dakota DS088 here. कौन है? It is I am Dakota DS088. Can you hear me? And with this, he said that I'm on my way to England, which means I'm not coming down to Paris, but I'm on my way. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. So the voice from the radio told him immediately, DS088, you are heading in the right direction, but now you ought to take 12 degrees west because आप इंग्लैंड जा रहे हो, तो आपको 12 degrees west आपको यहाँ से टर्न ले लेना चाहिए. I checked the map and the compass, switched over to the second and last fuel tank, and turned Dakota 12 degrees west towards England. So pilot ने वही किया जो उसको instructions मिले थे. उसने map check किया, the instructions were correct. He checked his compass. He switched on the second and the last fuel tank. उसके ओल्ड डेकोटा में केवल 2 फ्यूल टैंक्स थे, and this was the second and the last one. He turned the Dakota 12 degrees west. और 12 degrees west उसने उसको turn किया इंग्लैंड की तरफ और वो चल पड़ा. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो सोचने लगा कि यार घर पहुंच के एक बड़ा सा बढ़िया सा big English breakfast करूंगा. Yes, lots of things. मतलब not the normal one. जैसे हम डेली ऑफिस जाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा बुफे खाएं. बट छुट्टी वाले दिन we look forward to कि कुछ स्पेशल होगा आज डिनर, कुछ ब्रेकफास्ट स्पेशल होगा. He was also looking forward to the big English breakfast. Everything was going well. सब कुछ बढ़िया चल रहा था. Easy flight थी. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw these clouds. Storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. So, Paris अब उससे 150 kilometers पीछे रह गया था. Towards England वो move कर रहा था और तभी all of a sudden उसने देखा कि बहुत बड़े से clouds आ गए थे. And the clouds were very dense and they were storm clouds. Storm clouds में fly करना is not easy. Normally जो planes fly करते हैं वो clouds के ऊपर fly करते हैं.
जिस पॉइंट ऑफ टाइम डेकोटा जो था वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, या यूं कह लो कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू, और उसने देखा कि अचानक स्टॉर्म क्लाउड्स आ गए, तो फॉर अ मोमेंट ही वॉज इन अ डिलेमा, क्या करे अब। दोस क्लाउड्स वर ह्यूज एंड दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, बहुत ही डार्क क्लाउड्स थे, और उसके सामने जहां तक उसकी नजर जा रही थी उसको सिर्फ और सिर्फ क्लाउड्स दिख रहे थे। अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, देवर डार्क क्लाउड्स। यू नो, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई, मुझे अच्छे से पता था कि मेरे टैंक में इतना फ्यूल नहीं है कि मैं इसके लेफ्ट राइट या नॉर्थ या साउथ से इन क्लाउड्स के जा सकूं, क्योंकि इतना फ्यूल उसके पास नहीं बचा था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। उसको एक ख्याल तो आया कि यहाँ से वापस मुड़ जाता हूँ, पेरिस ही चला जाता हूँ। बट फिर उसको याद आया कि अब मुझे घर जाना है अपनी फैमिली के पास, उनके साथ ब्रेकफास्ट करना है मॉर्निंग में, उसने प्लान कर रखा था, शायद अपने बच्चों से वाइफ से बात भी की होगी मे बी। सो I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. और उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही हूँ। उसने कहा चलो let's take the risk, and he flew right into the storm. वो सीधे बादलों में घुस गया. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. और जैसे ही वो स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर घुसा, अचानक ऐसा लगा जैसे सब तरफ अंधेरा छा गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एरोप्लेन के बाहर क्या था, कहाँ बादल है, कहाँ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, और स्टॉर्म क्लाउड्स में एरोप्लेन ऐसा लग रहा था जैसे किसी खिलौने की तरह वो अपने आप ही जंप कर रहा था, अपने आप ही वो उसका बैलेंस जो था वो थोड़ा सा बिगड़ रहा था, इट वाज ट्विस्टिंग इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव, मैंने अपना कंपास देखा, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जैसे अचानक अपने सारे डायरेक्शंस खो चुका था, वो गोल गोल घूमे जा रहा था, डायरेक्शन ही नहीं समझ आ रहा था कि मेरा एयरप्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरफ जा रहा है। हाँ, अभी तक उसने लाइटनिंग की बात तो नहीं करी है, बस बादलों में ही है वो। एंड द क्लाउड्स आर जस्ट मेक, क्लाउड्स के साथ में कई बार क्या होता है, एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, क्योंकि लो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लेन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि प्लेन्स को हवा में उड़ने की हैबिट होती है, उनको जो बनाया गया है वो हवा के लिए बनाया गया है। तो कहीं एयर पॉकेट में अगर फंस जाते हैं तो फॉर सम टाइम इट इज लाइक काइंड ऑफ स्टेबल, जैसे एक जगह पे रुक जाए ना, तो वहाँ शेकी शेकी सा हो जाता है प्लेन। लेकिन जैसे ही वो एयर पॉकेट को क्रॉस कर पाते हैं वो लोग, जैसे थोड़ी सी हवा चलती है, तो वो फिर नॉर्मल हो जाता है। एंड दिस इज क्वाइट ऑफ्टन, ये ज्यादातर फ्लाइट्स में कहीं ना कहीं, अगर आपकी एक दो घंटे की फ्लाइट है तो हो सकता है एक आधा एयर पॉकेट आपको फेस करना पड़े, बट इट इज क्वाइट नॉर्मल। बट कभी कभी यही एयर पॉकेट्स जो होती हैं ये जानलेवा भी हो जाती हैं, अगर बहुत ज्यादा देर तक सिचुएशन कंटिन्यू करे तो फिलहाल यहाँ पे उसका कंपास जो था, इट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, इट वाज डेड, कंपास तो उसका डेड हो चुका था, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, अचानक उसको ऐसा लगा जैसे उसके ओल्ड डेकोटा के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे थे, ना बाहर की लाइट कुछ जल के कुछ समझ आ रहा था कि बाहर उसको कुछ अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, अंदर उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे जो उसको कंट्रोल करते हैं डेकोटा को, वो सब ऐसे लग रहा था दे वर ऑल डेड। मैंने रेडियो ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, एंड नाउ ही वाज इन अ पैनिक मोड कि पेरिस कंट्रोल को ट्राई कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पेरिस के पास से गुजरा था, 150 किलोमीटर इज नॉट अ बिग डिस्टेंस, ठीक है, कोई ना कोई कंट्रोल रूम आसपास होगा ही ट्राइड टू से, बट ही कुड नॉट हियर, है ना, उसको कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। Then in the black clouds quite near me, I saw another airplane. For a moment उसको लगा कि सब कुछ लॉस्ट है, उसका रेडियो डेड था, कहीं से कोई आंसर नहीं मिल रहा था उसको, कोई उसको बता नहीं पा रहा था कि आसमान में उसकी लोकेशन कहाँ पर है। राइट, रोड्स पे तो आपको पता है कि आपको रोड पे चलना है, लेफ्ट राइट एक साइड पे चलोगे आप रोड पे, बट आसमान में, समुद्र में, ऐसी जगहों पे आप कैसे डिसाइड करते हो, अनलेस एंड यू हैव अ कंपास टू टेल यू कि विच डायरेक्शन यू आर मूविंग ऑन। तो यहाँ उसको कोई कुछ बताने वाला नहीं था, हिज कंपास हैड स्टॉप वर्किंग, हिज रेडियो वाज कुड नॉट कैच एनी कनेक्ट सिग्नल्स, एंड आई कुड नॉट सी, उसको दिख नहीं रहा था कि वो एक्चुअली है कहाँ पे, किस डायरेक्शन में अपने प्लेन को ले जाए। He was quite lost. तभी इसी अंधेरे में, इन्हीं ब्लैक क्लाउड्स के बीच में अचानक ऐसे लगा he saw another aeroplane, उसी तूफान में। It has no lights on its wings. Normally रात में विंग्स पे लाइट्स जल रही होती है, चाहे वो हल्की हल्की सी चले, बट दे आर देयर, तो पता रहता है कि कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है रात में। बट यहाँ पे इस वाले उस पे कोई लाइट्स भी नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा था वो, यू नो, उस अंधेरे में भी somehow I could make out कि there was another airplane which was flying through the storm, बिल्कुल मेरी तरह से था। I could see the pilot's face turn towards me, मैंने देखा कि पायलट ने मेरी ओर ही फेस कर रखा था।
I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. और मुझे इतनी खुशी हुई, इस आंधी तूफान में मेरे साथ में कोई तो है, यू नो, व्हेन यू आर टोटली लॉस्ट, आप बिल्कुल अंधेरे में, तो आपको रियलाइज हो कि आपके आसपास कुछ है, तो आपकी हिम्मत सी बन जाती है, चल यार एक से दो भले, कहीं कुछ रास्ता निकाल लेंगे। और वो बहुत खुश हुआ व्हेन ही लिफ्टेड हिज हैंड। दूसरे पायलट ने उसको हाथ हिला के इशारा किया, फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, जैसे वो इशारा कर रहा था मुझे फॉलो करो। He knows that I'm lost, I thought. He's trying to help me. और मैंने सोचा कि इसको समझ आ गया है कि I'm totally lost in this. And he's just trying to help me. He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और धीरे धीरे उसने अपने एरोप्लेन जो था वो नॉर्थ, मतलब कि उसके एयरप्लेन के आगे कर लिया, डेकोटा के आगे वो दूसरा वाला ब्लैक एरोप्लेन चल रहा था। नाउ इट वाज इजियर, अब वो बिल्कुल मेरे आगे चल रहा था, तो मेरे लिए बहुत आसान था उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बिल्कुल एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे अपना डेकोटा लगा दिया कि चलो इस तूफान से बाहर तो निकले पहले। After half an hour, the strange aeroplane was still there in front of me in the clouds. करीब आधे घंटे तक वो इसी तूफान में, इसी ब्लैक क्लाउड्स के अंदर चलते रहे, और अभी भी वो एरोप्लेन दूसरा वाला जो था मुझे गाइड कर रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे ओल्ड डेकोटा का लास्ट टैंक में हार्डली 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा है, किसी भी हाल में अब लैंडिंग जरूरी हो गई थी। I was starting to feel frightened again. मुझे फिर से डर लगने लगा था, but then he started to go down and I followed through the storm. और फिर अचानक मेरे आगे वाला प्लेन जो था वो नीचे जाने लगा, तो मुझे लगा कि शायद कहीं कुछ है लैंडिंग की जगह, तो मैं भी उसके पीछे पीछे तूफान से बाहर निकला। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. और जैसे ही मैं, मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक मैं क्लाउड से बाहर निकल आया था, और सामने there were two long straight lines. वो स्ट्रेट लाइंस कौन सी थी? रनवे की, ठीक है। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वाज सेफ। मैं इतना खुश हुआ कि फाइनली मुझे वो रनवे मिल गया जहां पे मैं अपना प्लेन लैंड कर सकता हूँ। आई वाज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माय फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी। मैंने नजर घुमा के उस ब्लैक एरोप्लेन को देखना चाहा कि मैं उसे थैंक्स करूं कि चलो उसकी वजह से मैं इस तूफान से बाहर निकल आया, लेकिन स्काई में कुछ और दिखा ही नहीं, पूरा आसमान एकदम खाली था। There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ चला गया था कुछ नहीं पता चला, मुझे कहीं आसमान में नहीं दिख रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. So, जब उसने लैंड किया तो उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था इस बात का कि यार ये ओल्ड डेकोटा में छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि उसे ओल्ड डेकोटा के चक्कर में आज जान जाते जाते बची थी। That plane was not so advanced. So finally he was happy. उसने अपने डेकोटा से उतरा and he walked towards the control tower. I went and asked, उसने कंट्रोल सेंटर में जाके उस लेडी से पूछा कि where I was, मैं कहाँ हूँ, कौन सा है ये एयरपोर्ट जहां मैं उतरा हूँ, और वो दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मैं उस दूसरे पायलट को थैंक्स कहना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. Another airplane? Up there in this storm? No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. And that lady, she answered कि another airplane, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इस आंधी तूफान में कोई दूसरा प्लेन आज फ्लाई नहीं कर रहा था, और रडार पे मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका ही प्लेन नजर आ रहा था। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? So, author was just left with the questions कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, कौन फ्लाई कर रहा था, कौन था जो यहाँ पे मैसेंजर, एक फरिश्ता बन के, एक एंजल बन के आया था जिसने आकर के मुझे सीधे लैंडिंग किस जगह पे, सीधे रनवे पे पहुंचा दिया। Who was the pilot on the strange black aeroplane इस storm में without lights? आखिर वो कौन था? That's a simple story about the black aeroplane.